welcome you all in our after a long summer vacation and COVID vacations. I once again welcome you all in our online classes, and today we are going to start our next chapter 2 from geography, name inside our earth. This chapter consists of various topics, but we take the first topic, that is layers of the earth. As we all know, the earth has different types of different layers, and the layers are crust, mantle and core. As you can see in the diagram, the layers of the earth are crust, mantle and core. Now we will take the first layer, which is the thinnest layer. And on this layer only, known as crust, on this layer we do many activities like farming, construction and minerals also. These are found on the crust and mantle, two layers. On these layers we can find different kinds of minerals. Now the thickness of the first layer, crust, is 35 km on land mass and 5 km on ocean floor. मीन्स जो अर्थ की फर्स्ट लेयर है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसकी थिकनेस लैंड मासेस पर 35 किलोमीटर है और समुद्र तल पर, ओशन फ्लोर्स पर उसकी जो थिकनेस है वो केवल कितनी है, 5 किलोमीटर। मेनली दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ, ये मीन्स मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज मेंटल। The thickness of the mantle below the crust layer is 2900 किलोमीटर। मीन्स जो सेकेंड लेयर है हमारी क्रस्ट के बाद मेंटल, उसकी जो थिकनेस है मेंटल के वो है 29 किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट। की जो क्रस्ट है उसके नीचे 2900 किलोमीटर उसकी थिकनेस है। द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज द कोर, विच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ with the radius of 3,500 kilometer, 3,500 kilometer. The radius of the earth core is 3,500 kilometer. It means, what is the diameter? Diameter will be 7,000 kilometer. And this core is made up of iron and nickel. By combining those iron and nickel, the formula of iron is Fe and nickel is Ni. Thus, by combining these two words, we call it knife, N-I-F-E. Combining this knife, N-I-F-E. This is a very hot layer, and all the things inside the earth got melted. Even the rocks get melted in the core. Now, next chapter is our rocks and minerals. The next topic of the chapter is rocks and minerals. We have different types of rocks on Earth's surface. As we know, the Earth crust is made up of various types of mineral matters that makes the Earth crust. There are three major types of rocks, namely igneous, sedimentary and metamorphic. मीन्स हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उस पर कई सारे रॉक्स मिलते हैं, जिनमें केवल थ्री रॉक्स है, जिसके नाम है igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Now we will learn how these rocks formed, कि वो कैसे बनते हैं। We will start from the first, that is igneous rocks. As we all know कि our earth core is very hot, all the things get melted in this core. So when the hot molten magma cools down, it becomes solid. जो हमारे अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की जो कोर है, उसमें से जब मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। वो ठंडा होने के बाद एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, इट बिकम्स सॉलिड, एंड द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम सच मैग्मा आर नोन एज इग्नियस रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है रॉक की, सबसे पहले वहीं से बनना शुरू हुआ, तो इनको हम या तो इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स को भी हम दो पार्ट्स में बांटा जाता है, और वो कौन से टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर? intrusive and extrusive. These are the two types of the rocks.
Yes. Now I will explain how igneous, intrusive and extrusive rocks are formed. By this example, this is volcano, and we all know that by volcanic eruption, and volcanic eruption is the hot magma comes out. जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा, हॉट मैग्मा बाहर आता है, उसको हम बाहर आने के बाद वी कॉल इट लावा. When it comes out, we call it lava. And when this hot magma cools down, the rocks formed by this method is known as igneous rocks. And igneous means extrusive. Igneous extrusive rocks. Igneous extrusive rocks क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहाँ आया है? मैग्मा बाहर आया है. एक्सटीरियर. एक्सट्रूसिव मीन्स क्योंकि वॉल्केनो से बाहर आया है, इसीलिए उससे जो रॉक्स बनती हैं उसको हम कहते हैं igneous extrusive rocks. बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारा, कई बार होता है कि उसको रास्ता नहीं मिला और वो अंदर ही वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो होता है, लेकिन वो अंदर ही कूल डाउन हो जाता है किसी कारणों से. उसके द्वारा जो भी रॉक्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव. इंट्रूसिव igneous rocks. So this is the first rock, how it forms igneous rocks, and the formation is the two types, intrusive and extrusive. I think you all must be clear how intrusive and extrusive rocks, igneous rocks are formed. The next is the metamorphic rocks. The sedimentary rocks. Sedimentary rocks. How these sedimentary rocks are formed? The sedimentary rocks are formed when the igneous rocks are broken into smaller, fine. देखिए बहुत पतले पतले टुकड़ों में जब वो टूट के गिरती है तो वो सेडिमेंट्स के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बन जाते हैं और वो सेडिमेंट्स फ्लो होते जाते हैं एक जगह से वन प्लेस टू अनदर. When it goes one place to another, एक धीरे धीरे जब वो एक जगह पे जाके एक जगह पे कहीं पे भी इकट्ठे होते जाएंगे और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सेडिमेंट्स की बनती जाती है. फर्स्ट लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, ऐसे सेडिमेंट्स की लेयर बनती जाएगी. उससे जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स है igneous रॉक्स, क्योंकि igneous रॉक्स को हमने क्या बोला था? प्राइमरी रॉक्स. फर्स्ट रॉक जो फॉर्म हुई है वो थी igneous रॉक्स. igneous रॉक्स के बाद में सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि igneous रॉक्स जब आगे फाइन टुकड़ों में टूटती है अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स में, उसके बाद वो पार्टिकल्स किसी और जगह पे जाके इकट्ठे होते रहते हैं कहीं पे और डिफरेंट लेयर्स एक के बाद दूसरी लेयर उस पर जमा होती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. यही सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब बहुत ऊपर से अर्थ के ऊपर हम कहते हैं चाहे व्हीकल्स का कैसा भी बहुत प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के बाद और वो और डीप इनसाइड अर्थ में जाती रहती है. जब वो और डीप इनसाइड अर्थ में जाएंगी उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है मेटामॉर्फिक. The next rocks which formed by high pressure. High pressure is known as metamorphic rocks. Again metamorphic rocks goes deep inside the earth. फिर से वही जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उन पे कंटिन्यूएशन में प्रेशर पड़ता जाता है तो आखिरी में वो कहाँ पहुँच जाती हैं? फिर से अर्थ की कोर में पहुँच जाएंगी और किस फॉर्म में आ जाएंगी? मॉल्टेन फॉर्म में. और जब वो मॉल्टेन फॉर्म में आ जाएंगी उसके बाद में नेक्स्ट फिर क्या होगा? फिर से igneous रॉक्स मतलब वो मॉल्टेन फॉर्म में आ गई, फिर कहीं से वॉल्केनिक इरप्शन होगा, फिर वो वापस किसके रूप में आएंगी? मैग्मा के रूप में. मैग्मा बाहर आके लावा जिसे कहते हैं. फिर वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेंगी, उसके बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल. यही इसको कहेंगे रॉक साइकिल. So in this chapter these are the main important points.
So you all have to draw in your notebook the picture of Earth, interior of the Earth, and as well as the rock cycle. You all have to draw in your notebook. So these are the main points of this chapter. Now I would like to conclude my chapter and have a good day. Okay. I think all of you get the lesson very easily, and I think you all find it very easy. If you have any doubts, anyone who have any doubts, they can contact me on my personal number, and I will clear the doubts of each and every student. And next I will give you the question answers exercise of this chapter later by WhatsApp, and you all write it down in your notebook, show it on WhatsApp group. If anyone have any other kind of doubts, कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये नहीं कि पूरा चैप्टर, थोड़ी सी जो भी जिस टॉपिक में आपको डाउट है उसको हम फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट, ये तो हमारा ज्योग्राफी का हो गया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर सिविक्स। नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम सिविक्स, बिकॉज इन class 7 I think history chapter 1 completed, geography 1 completed, civics 1 completed, and this is geography second chapter. Now we will start from second chapter civics. The next chapter is civics. We will do it in the next class, and exercise I will give you on WhatsApp. Okay, thank you. जैसा बच्चों आपको पता है कि इस वेकेशंस का कोई अभी एंड तो पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक हमें ऐसी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो मैंने आपको पहले असाइनमेंट्स तो दिए हैं। असाइनमेंट आपको एक अलग नोटबुक में करना है, बताइएगा। उसके लिए 100 पेज की एक नोटबुक बनानी है। जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं वो आपको उसी में, एक सिंगल नोटबुक है उसमें ही सारे उसी में करने हैं। इसके साथ ही साथ आपके जो है टेस्ट भी होना है, पीरियोडिक टेस्ट, और उसके लिए मैं इन्फॉर्म करूँगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मैं एक्सरसाइज भेज रही हूँ उसी में से हो। जो चैप्टर आपको दिया गया है उस चैप्टर को आपको पूरी अच्छी तरह से रीड करना है। उसमें से मैं कोई भी क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उस तरह के क्वेश्चंस बनाऊंगी और आपको दिए जाएंगे और आपको टेस्ट देना है। ये कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए, सब लोग। और साथ ही साथ हम आपकी गूगल मीट पे भी कोशिश करेंगे कि गूगल मीट पे भी क्लास लेंगे। वो गूगल मीट पे जो क्लास होगी वो आपके डाउट क्लियर करने के लिए होगी, कि जो हम गूगल मीट पे क्लास लेंगे आपके जो डाउट हैं वो कैसे क्लियर किसको है वो हम करेंगे, उस पर हम सभी के डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ गुड डे।